Hello students, today we'll start new topic India-Israel relation. This is the last topic of the chapter India's external relations. So this is a newly added topic by CBSE. Why this is a newly topic? Because this country, Israel, has today become the most emerging successful country, and this is the reason that its relations with India have also become very important. So Israel, this topic has also been added in the chapter Alternative Center of Power. तो दोनों ही perspective से this topic is very important because Israel in the present times have increased its power immensely. This is the reason कि इज़राइल का जो impact है पूरे world में वो काफ़ी ज़्यादा influential हो चुका है. So India's relations with Israel also became very crucial. So in both the chapters we'll discuss about Israel. So I again request you all to please pay attention on this topic. So in this there are few things which are the basics that you need to take care. One is when they started maintaining their relations, कि कब उन्होंने finally diplomatic relations को initiate किया. So it was in the year 1992. So some keywords you need to take care. 1992 was the beginning of the diplomatic relations between India and Israel. Then what are the sectors where both are cooperating with each other extensively? Cooperation तो हर एरिया में होता है. कोई भी कंट्री अगर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करती है तो कॉपरेशन तो बहुत सारे एरियाज में होता है, बट कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जहाँ पे कॉपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है. सो डिफेंस एंड एग्रीकल्चर, these two sectors you need to take care that in these two areas the cooperation between India and Israel is quite significant. So this is the reason that I have marked this thing that so that you will not forget. ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. Now the detailed study now we will do through the PPT. We'll continue with our topic India-Israel relation. So as I told you that India maintained diplomatic relations with Israel in the year 1992. Now class, before 1992, India was not much closer to Israel because at that time India was more close to the Arab nation. As you can see here in this map that Israel is in the Middle East or Israel is involved in conflict with the Arab nation. So Arab nations के साथ Israel का हमेशा से एक conflict रहा है right from the beginning. इसका जो impact है वो इंडिया पर भी पड़ा because इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी थी. तो दिस इज़ द रीज़न दैट अरब नेशन से इंडिया ने हमेशा रिलेशंस मेंटेन करके रखे. इज़राइल का जो सबसे बड़ा राइवल है दैट इज़ पैलेस्टाइन. सो इंडिया वॉज मोर क्लोज टू पैलेस्टाइन. बट after Cold War, after the end of Cold War, now India changed its policy as Israel in the present times became a very powerful emerging nation. This is the reason that now India has changed its policy. Now India became more close to Israel, and this is the reason post Cold War period में as I told you before that India की जो policy थी it was more pragmatic. अब इंडिया की पॉलिसी थोड़ी प्रैक्टिकल थी, pragmatic थी. This is the reason that India started maintaining relations with Israel. Now class, so this is the situation that ये जो मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं इज़राइल के जनरली सभी नेशंस के साथ, बट बेसिकली द मेजर कॉन्फ्लिक्ट इज़ विद पैलेस्टाइन एंड रिलीजियस एक मेजर रीज़न है दैट इज़राइल इज़ अ ज्यूज़ पॉपुलेटेड कंट्री. वहाँ पे ज्यूज़ का डोमिनेशन है और अरब नेशंस दे ऑल आर मुस्लिम डोमिनेटेड. सो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है और बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनके आपस में. सो दिस वाज द रीज़न कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा. इंडिया अपनी जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको इंडिया डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी. दिस इज़ द रीज़न कि इनिशियली इंडिया ने इसराइल से रिलेशंस मेंटेन नहीं किए. बट नाउ इन द प्रेजेंट टाइम्स
Israel today has emerged as one of the most powerful nation in the 21st century, especially in terms of science and technology. Israel, although it's a very small nation, but उन्होंने काफ़ी रैपिडली प्रोग्रेस करी है. सो दिस इज़ द रीज़न कि आज इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स जो उसने गेन किए हैं, इसी वजह से आज उसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पूरे वर्ल्ड में अपनी बना ली है कि पूरे अरब कंट्रीज़ इतने सारे राइवल से घिरे होने के बाद भी इसराइल is giving tough competition to these nations. So its economy, its defense system, technology, intelligence, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं, इसराइल अपने इनोवेशंस के लिए जाना जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग इसराइल अ वेरी इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट कंट्री. सो क्लास, एज आई टोल्ड यू, अल्टरनेटिव सेंटर में भी इसराइल नेशन इंक्लूड किया गया इन दिस पर्टिकुलर ईयर. सो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो टॉपिक है ये हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. राइज ऑफ इसराइल, वाई इसराइल इज़ कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव सेंटर in the world, so that we will also discuss, and later on we will discuss Israel's relations with India, जो topic आपका है chapter 4 India's external relations. Now Israel, situated in the middle of the burning politics of West Asian countries, Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense prowess, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने कि इसराइल आज इतना पावरफुल क्यों है. नंबर 1, डिफेंस. वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ के काफ़ी हाईली एडवांस्ड है. देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, नॉट जस्ट इन द डिफेंस सेक्टर, इन अदर सेक्टर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस काफ़ी वहाँ पे रेगुलरली होते रहते हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट इसराइल इज़ एक्सपोर्टिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स टू द वर्ल्ड. सो द वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन इसराइल. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उस पर इंडिया भी बहुत डिपेंडेंट है. इसराइल हैज़ गिवन लॉट ऑफ असिस्टेंस टू इंडिया. एज आई टोल्ड यू इनिशियली इन द फ्लो चार्ट, that two things specially affect India-Israel relations. One is the agricultural development of Israel and second one is the defense sector. दोनों में ही Israel is giving us lot of support. Now class, this nation is based on the religion, Jewish religion. So this is the reason कि Israel is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular. So global politics में Israel, although बहुत small nation है but वो affect कर रहा है because एक तो Jewish population major concentrated Israel में है. Then अपना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उसने अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बनाई है. देन अरब डोमिनेटेड जो वेस्ट एशियन जो पूरा रीजन है वहाँ पर भी इसराइल ने अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड प्रोग्रेस, एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. देन नाउ क्लास, as we had already discussed that it is one of the most powerful nation of the 21st century, and this I think we had already discussed. Now economic power, first we will discuss about the economic power of Israel. That economy of Israel is a highly advanced free market primarily knowledge based economy. The country's major economic sector are high technology and industrial manufacturing. So आपको points बनाने economic, political, ये जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे इसराइल ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स गेन किए हैं. सो फर्स्ट आपको इकोनॉमिक पावर को एक्सप्लेन करना है. इकोनॉमिक पावर में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टर आएगा. सो Israel's diamond industry is one of the world's centers for diamond cutting and polishing, amounting to 23.2% of all exports. So इसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया है? With its diamond industry.
Then Israel is a high-tech superpower and one of the world's top weapon exporters with approximately $6.5 billion in annual arms sales. Defense, I already told you कि वहाँ का डिफेंस मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वर्ल्ड के काफ़ी सारे कंट्री इसराइल पे डिपेंडेंट है, प्लस इंडिया तो है ही। तो ये आपको फैक्टर ध्यान रखना है। नाउ मिलिट्री पावर ऑफ इसराइल। So Israel Defense Forces are believed to have had an operational nuclear weapons capability since 1967. ये बहुत बड़ी बात है कि 67 से ही इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी आ चुकी थी। The increasing use of robots by the Israel Defense Forces is a part of a larger strategy to minimize risk to soldiers when possible. So robotics technology उनमें भी इन्होंने काफ़ी एडवांसमेंट्स गेन किए सो दैट कि उनके सोल्जर्स, क्योंकि आपको पता ही है इट्स वेरी स्मॉल नेशन, पॉपुलेशन वाइज इसराइल इतना नहीं है, लेकिन उसने जो सोल्जर्स की जो कमी है उसको उन्होंने रोबोट्स के थ्रू कंपनसेट किया है सो दैट कि इट कैन गिव कॉम्पिटिशन टू द अरब नेशन। इतने सारे अरब नेशंस हैं जो इसराइल के अगेंस्ट है। सो इसराइल ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से उन अरब नेशंस को इतने अच्छे से कॉम्पीट कर रहा है। Then, despite Israel's small size, about 4.5% of its GDP is spent on research and development, which resulted in Israel supplying drones to NATO nations to be used at Afghanistan in 2010. So, research and development area में इसराइल ने इतने अच्छे innovations किए हैं। This is the reason कि इसराइल वर्ल्ड को अपनी जो टेक्नोलॉजिकल जो सप्लाईज़ हैं, जो भी इनोवेशंस उन्होंने किए हैं, तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। लाइक दे आर सप्लाइंग ड्रोन्स, दे हैव इनोवेटेड रोबोट्स जो कि सोल्जर्स को कंपनसेट कर रहे हैं। अब ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने नाटो नेशंस को सप्लाई किया, तो उन्होंने इससे अपनी इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। Then political and diplomatic power of Israel. So Israel maintains full diplomatic relations and open borders with two of its Arab neighbors, Egypt and Jordan, after signing peace treaties in 79 and 94 respectively. So ऐसा नहीं है कि इसराइल ने सिर्फ उसके सारे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं सब उसके राइवल्स हैं। इसराइल ने ये उसकी डिप्लोमेसी है कि कुछ अरब कंट्रीज़ को भी उसने अपने फेवर में कर लिया है। तो ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कुछ अरब नेशंस इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ इसराइल ने पीस ट्रीटी साइन करी है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दैट इट एबल टू गेन द फेवर ऑफ इजिप्ट एंड जॉर्डन। Then the close friendship with the United States has been a linchpin of Israel's foreign policy for decades. As you know that Israel was always been supported by America, और अमेरिका के सपोर्ट की वजह से Israel could able to sustain at such a burning place, एक वेस्ट एशिया जैसी बर्निंग प्लेस जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई अनस्टेबल काइंड ऑफ कंडीशन चलती रहती है हमेशा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी इसराइल सस्टेन कर पाए क्योंकि इनिशियली इसराइल के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे। उस समय यूएस ने इसराइल को बहुत हेल्प करी। अब इन द प्रेजेंट टाइम इट बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। अब इसराइल बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब वो यूएस पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, बट यूएस हैज़ ऑलवेज बीन इट्स वेरी गुड फ्रेंड। देन इसराइल हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1949। इसराइल का जो बर्थ हुआ था स्टूडेंट्स, द ईयर वॉज 1949। दिस ईयर यू नीड टू टेक केयर, इट वॉज इन द 1949 एंड एट दैट टाइम इट जॉइंड यूएनओ, तभी इसराइल ने यूएनओ ज्वाइन कर लिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस इसराइल पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IAEA, WHO, सभी में इसराइल का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। सो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो इसराइल का जो एरिया है वहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है। इसराइल मेंटेन रिलेशंस विद इजिप्ट एंड जॉर्डन। सेकेंड थिंग, वर्ल्ड सुपर पावर इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ इसराइल, तो ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देन इसराइल इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ UNO, ये भी इसराइल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इतना स्मॉल नेशन है लेकिन वर्ल्ड में उसने अपना जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रखा है। नाउ क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about India's relations with Israel. So students,
Next, we will discuss about India's relations with Israel.